Hello students, future doctors and engineers. Today onwards we are going to start our physics classes for NEET and JEE. Today we are going to start our class with dimension analysis. देखो आज हम लोग ऐसे डायमेंशन एनालिसिस पढ़ेंगे जिससे डायमेंशन एनालिसिस एकदम इजी हो जाए. So the technique is to use multiplication and division to understand dimension analysis. So अगर आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आता है क्रिएटिव वे में तो आपको डायमेंशन एनालिसिस आएगा. सो इन माय वर्जन फिजिक्स होल्ड्स टू टाइप ऑफ रिलेशंस, दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, that is multiplication, and inverse proportional, that is division. So let experiment this to create some physical quantity, but to create some physical quantity we have to learn some physical quantity first. For example, velocity. What is velocity? Meter per second. Meter per second or meter second to the power minus 1. Meter for length, second for time, t to the power minus 1. अच्छा, what is the difference between dimension analysis and numerical analysis? In dimension analysis, we represent any kind of physical quantity in terms of m, l and t. That means we are not bothered about the value of the quantity. For example, आप लोग जब सम करोगे तब आपको पूछेगा 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड किया गया है, बट इन दिस सिचुएशन व्हाट आर द क्वांटिटी इन्वॉल्विंग फोर्स. दैट मीन्स मास कैसा है, कैसे पावर में है, लेंथ कैसे पावर में है, टाइम कैसे पावर में है. दिस आर द स्टडी पोर्शन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस. फॉर एग्जाम्पल देखो, वेलोसिटी इन जनरल 5 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड. इन दिस एल टी टू द पावर माइनस 2 इज द मेन पोर्शन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस. नेक्स्ट, तो velocity L t to the power minus 1. Similarly, acceleration unit meter per second square or meter second to the power minus 2. Sorry, meter second to the power minus 2. Meter for length time to the power minus 2. So acceleration L t to the power minus 2. देखो खाली मीटर को L से इसको हमको कितना मीटर डिस्टेंस कवर्ड किया गया है वो उतना मालूम नहीं है. दैट मीन्स मीटर मीन्स वन काइंड ऑफ लेंथ and time means t to the power minus 2. So acceleration L t to the power minus 2. देखो L 1 2 minus 1 minus 2. देखो now we are going to use this dimension to create another dimension. For example, multiplication. First, force. What is force? Force equal to mass into acceleration. That means we are going to use acceleration multiplied by mass. In case of this, m represent the mass, m for mass, not distance covered, meter per second. अच्छा, L t to the power minus 2, L t to the power meter per second square, meter per second square. तो m L t to the power minus 2. तो force m L t to the power minus 2. अच्छा, now our experiment will start. अब देखो कैसे यूज करना है, इनटू और डिवाइड. सो द बेस पॉइंट इज फोर्स. तो फोर्स इनटू लेंथ, दैट मीन्स द डायमेंशन विल बी m मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. L मीन्स डिस्प्लेसमेंट, सम लेंथ, m L square t to the power minus 2, m L square t to the power minus 2. Now what is the physical quantity? फोर्स के साथ तो मल्टीप्लाई कर लिए. अब we are going to interpret our own version of definition. That means we applied force. देखो क्या पता है, फोर्स क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है. फोर्स we applied and there is some displacement of a body. तो कोई बॉक्स के ऊपर फोर्स अप्लाइड किए, उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज कॉल्ड वर्क डन. So देखो, if we multiplied force, we get work done. Similarly, force divided by length. What is that? M L t to the power minus 2 divided by L. L get cancelled. M L to the power 0 or m t to the power minus 2. What is this?
दिस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, TENSION। सो देखो फोर्स से L इंटू और फोर्स से डिवाइड करने से दो फिजिकल क्वांटिटी बन गया। दैट मीन्स आवर कंसेप्ट वाज इंटू एंड डिवाइड। सो वी आर गोइंग टू मूविंग। अच्छा, नाउ फोर्स वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय एरिया। देखो फोर्स वी आर गोइंग टू यूज एरिया। एरिया मीन्स मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मीन्स लेंथ स्क्वायर। तो फोर्स बाय एरिया ML(T⁻²) L स्क्वायर, M(T⁻²) divided by L. So what will be the dimension? ML(1) T⁻²। Now force by area, अब देखो divided means per or with respect to। So if we know that divide means per or with respect to, we can create our definition. For example, force per unit area, that means force applied। देखो कैसे फोर्स क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट एरिया, व्हाट इज दैट? दैट इज प्रेशर। अब देखो using pressure we can generate other physical quantity, मतलब there are some units that are equal to pressure. Which are the units? Pressure equal to stress equal to Young modulus। So it is very convenient that if we learn that force by area is pressure, or no need to learn the dimension, just learn that force divided by area, pressure, stress, Young modulus। Young modulus is very important for our exam। अच्छा, और stress in NEET 2020 did ask direct question that give the dimension of stress। So देखो with help of force we generate force by area, force into length, force divided by length। Now force into length means we applied force and there is some distance covered। अब देखो if we use as force into area, what will be the interpretation? We applied force and there is some area displaced। It is impossible to displace area with help to force। So there is no physical quantity। याद रखो force divided by area होता है, into area कुछ नहीं है। तो देखो next, what is acceleration? That means acceleration is velocity by time। That means there is change of velocity, there is change of, what is change of velocity? Initially we start with 0 and there we gain some velocity after some time। That means 0 से लेके कुछ बना, that is called change in velocity। Now we are measuring velocity with respect to time, it is the main concept। Now we are going to understand velocity gradient। What is velocity gradient? Velocity gradient, gradient। What is velocity gradient? We'll measure velocity with respect to distance, velocity by distance। Rather distance can be depth। अब देखो डेप्थ कहाँ होता है? वाटर में होता है, वाटर का डेप्थ होता है, फिर ओशन का डेप्थ होता है। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू इंटरप्रेट वेलोसिटी ग्रेडियंट इन अ लिक्विड। सो वेलोसिटी ग्रेडियंट आपको लीनियर मोशन में नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ लिक्विड मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स वी कैन अंडरस्टैंड द वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब देखो तो इमेजिन करना पड़ेगा, ऐसा एक घर में पूरा पानी भरा हुआ है और आप क्या किए, एक पिंग पोंग बॉल लेके नीचे गए, फिर उसको छोड़ दे। तो इनिशियली व्हाट वाज द वेलोसिटी? इनिशियली द वेलोसिटी वाज 0। आफ्टर रिलीजिंग द बॉल it will start moving upwards direction। as it move upwards direction the velocity of the ball get increased। तो देखो डेप्थ, ऊपर से अगर देखोगे डेप्थ, वो जितना ऊपर आएगा उसका डेप्थ उतना घटेगा। तो जब मैक्सिमम डेप्थ में था तब वाटर बेड का जो प्रेशर वो सबसे ज्यादा था, जितना ऊपर उठा प्रेशर रिलीज हुआ, इसलिए वेलोसिटी इंक्रीज हुआ। as it come upwards the velocity increases।
इसका एग्जाम्पल एक है, एक गमला लेना या बाल्टी लेना, उसमें पानी भर लेना, मग को उल्टा करके डुबा देना, फिर छोड़ देना, तो एकदम झट से उठेगा. दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट. चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ. इनिशियली वेलोसिटी 0, then after some time it gains some velocity. That is called velocity gradient. Now what is the dimension? Velocity meter per second. Meter per second, per means -1 divided by L. L get cancelled, that is t to the power -1. What is velocity gradient? t to the power -1. अब देखो velocity gradient का जो dimension होता है that is equal to frequency angular velocity देखो frequency angular velocity have the similar dimension. Now work done, force into displacement, this is work done equal to energy, equal to heat. Heat is one kind of energy, that's why the dimension are equal. अब देखो we are going to use the velocity gradient. अब देखो force by area क्या होता है? प्रेशर. अब देखो जब इन केस ऑफ मोशन ऑफ अ बॉल इन अ लिक्विड, द रोल ऑफ प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो देखो जब कोई लिक्विड में रखा जाता है द डेप्थ का प्रेशर इंपॉर्टेंट है. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू यूज प्रेशर टू डिफाइन अ फिजिकल क्वांटिटी. इट इज नेम एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. व्हाट इज विस्कोसिटी? फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड विस्कस फोर्स. देखो आप एक काम करो, पानी में अपना हाथ दो, फिर ऐसे ऐसे करो, फिर हनी में आप हाथ दो, फिर ऐसे ऐसे करो, देखना चिपचिपापन हनी में ज्यादा है. वो जो फोर्स लेके आपको स्टिक कर रहा है दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी और विस्कस फोर्स. जो फोर्स लेके आपका हाथ को स्टिक करवा रहा है दैट इज कॉल्ड विस्कस फोर्स. और देखो वाटर का विस्कस फोर्स डिफरेंट है, हनी का डिफरेंट है, अल्कोहल का डिफरेंट है, और दूसरा का दूसरा होता है. टू आइडेंटिफाई दिस वी यूज अ कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रिप्रेजेंट बाय ईटा. इट इज वन काइंड ऑफ एन. ईटा इक्वल टू प्रेशर बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट. देखो बुक में बहुत बड़ा दिया होगा लेकिन वी कैन सिंपली अंडरस्टैंड. देखो प्रेशर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट. दिस इज माय ओन वर्जन. m l to the power -1 t to the power -2 वेलोसिटी ग्रेडियंट t to the power -1. अब देखो साइन सेम है तो कटेगा t to the power -1. तो m l to the power -1 t to the power -1. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में देखो -1 दोनों आता है, ठीक है ना. m l to the power -1 t to the power -1 वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, दिस आर द डायमेंशन एनालिसिस. वेरी इजीली हम लोग इसको इनकाउंटर कर लिए. नाउ व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे नीट 2020 में पूछा गया था, ये स्ट्रेस का डायमेंशन आप बताओ, 4 मार्क्स मिला. इन अदर एग्जामिनेशंस आपको क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? एक इक्वेशन दिया जाएगा और पूछेगा विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, ये देखो ये इक्वेशन ठीक है कि नहीं. तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन हम लोग कंपेयर करके देखेंगे, इक्वल है तो इक्वेशन ठीक है, नहीं तो गलत है. तो क्या एडजस्ट किया जा सकता है वो भी हम लोग सीखेंगे. नेक्स्ट और क्या क्वेश्चन है, जैसे फोर्स को हम लोग क्या मास इनटू एक्सीलरेशन से इंटरप्रेट किया. एग्जामिनर आपको पूछ सकता है फोर्स को आप ग्रेविटी, डेंसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से रिप्रेजेंट करो, कुछ दूसरा ही यूनिट से रिप्रेजेंट करने बोलेगा. सो ये 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है. वेरी इजी चैप्टर, इंट्रोडक्टरी चैप्टर है. तो हम लोग इसको स्टार्ट कर दिए हैं और नेक्स्ट क्लास से हम लोग दूसरा टॉपिक करेंगे. थैंक यू.